Hey, hi, my name is Shiv and I am an artist. और अभी हम लाइक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं बुक 101 ऐसे दैट विल चेंज द वे यू थिंक। और अभी हम इसके दूसरे चैप्टर पे हैं और चैप्टर का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ डेली रूटीन। तो शुरू करते हैं। The most successful people in the history, the ones many refer to as geniusness in their field. The most successful people in the history is the ones many refer as a genius in their fields, master of their crafts, had one had one thing in common, rather than talent. Most ahead, ADHERED, to recreate. Most ahead, नहीं, not ahead. Most AD adhered. कभी कभी सिंपल वर्ड ना इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं। मोस्ट adhered, okay, heard, HERED, heard, most adhered to rigid and specific routine, other than talent, most specific routine। आगे पढ़ते हैं, शायद समझ में आएगा। इतना समझ में आया। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द हिस्ट्री आर द वंस may refer to as a genius in their field, master of their crafts, and one thing in common other than talent। कि जो भी दुनिया में बहुत महान लोग, बहुत सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनमें टैलेंट के अलावा और क्या कॉमन है उनमें, मतलब टैलेंट के अलावा और क्या कॉमन है। ये एडहियर्ड, इसका कुछ तो मतलब होगा, मतलब मोस्ट ADHERED, इसका कुछ तो ढंग का मीनिंग है जो इस पूरे सेंटेंस को मीनिंग देता है, जिसको मुझे प्रनाउंस करना भी नहीं आ रहा और इसका मुझे मतलब भी नहीं पता। बट एंड स्पेसिफिक रूटीन, मतलब एंड स्पेसिफिक ब्रैकेट में और रूटीन लिखा हुआ है, तो मतलब एक स्पेसिफिक तरह की रूटीन उनमें कॉमन दिखाई देती है टैलेंट के अलावा। तो शायद ये उस रूटीन के बारे में इस बात है, क्योंकि द चैप्टर का नाम ही यही है, द साइकोलॉजी ऑफ डेली रूटीन। तो हम समझ सकते हैं कि ये उन लोगों के डेली रूटीन के बारे में होगा, कुछ खास बातें बताई जाएंगी इसमें डेली रूटीन के बारे में। पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा, आई गेस। रूटीन सीम्स बोरिंग एंड antithesis to what you are told a good life is made of. Routine seems boring and antithesis to what you are told a good life is made of. Happiness we infer comes from in the perpetual perpetual seeking of more, regardless what is more। इस सेंटेंस का मेरे को कोई समझ में नहीं आया, एक बार और पढ़ के देखते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। रूटीन सीम्स बोरिंग, मतलब ऐसी रूटीन जो बोरिंग दिखती हो। एंड एंटीथेसिस का मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे नहीं पता, होगा कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। एंड antithesis of what you have told, what you are told a good life is made of. Happiness we infer come from the perpetual seeking of more, regardless what is more of। Yet we don't realize is that having a routine does not mean you sit in the same office every day for the same number of hours। ये समझ में आ गया, ये कितना सिंपल है, ये समझ में आया। Yet we don't realize that
Having a routine does not mean sit in the same office every day for the same number of hours. कि मतलब रूटीन का मतलब ये नहीं है कि एक ही जगह पे या एक ही ऑफिस पे सेम नंबर ऑफ मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बैठना, उसको ही रूटीन नहीं बोलते हैं. उसके अलावा भी मतलब मेरे को लगता है मेरे को पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ऐसे बार बार ब्रेक लग रही है. In routine, yet we don't realize that having a routine does not mean sit in the same office every day for the same number of hours. Your routine could be traveling to a different country every month. It could be it it could be being routinely unroutine. It could be me. It could being routinely unroutine. The point is not what the routine consists of. The point is not what the routine consists of, but how steady and safe your subconscious mind is made through the through the repetitive emotions, repetitive motions and expected outcome. मेरे को इस side पर- Yet we don't realize that having a routine does not mean sit in the same office every day for the same hours of same numbers of hour. Your routine could be traveling to a different country every month. It could being routinely unroutine. The point is not what the routine consists of, but how steady and safe your subconscious mind is made through repetitive emotion and expected outcome. Whatever you want your day to day to life, whatever you want from your whatever you want your day to life to consist of doesn't matter. The point is that you decide and then stick to it. The point is that you decide and you stick to it. In short, routine is important because habitualness create mood, and mood create the nature aspect of your personality, not to mention that letting yourself be jogged around by impulsiveness is breeding ground for everything you essentially do not want. Most things that bring genuinely happiness are not just temporary, immediate gratification, and those things also come with resistance and require sacrifice. Yet there is a way to nullify nullify the feelings of sacrifice when you integrate a task into a norm, or push through resistance with regulation. These and all the other reasons why routine is so important, and happy people tend to follow them more. हाँ, तो 2-3 बार लगातार पढ़ने के बाद मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि डेली रूटीन का मतलब ये नहीं है कि किसी एक ऑफिस में डेली सेम अमाउंट ऑफ द टाइम के लिए बैठना या डेली सेम चीज़ें करना. इट कुड मीन इसका मतलब रूटीन का मतलब सिंपली ये है कि आपने कोई चीज़ सेट की है कि भले वो आप 2 दिन बाद करोगे, या 2 दिन में 1-2 बार इतने टाइम के लिए करोगे, या 3 दिन में इतने टाइम के लिए करोगे, या रेपिटेडली कितने मतलब एक चीज़ सेट कर देनी है चाहे कैसे भी हो. मतलब वो ऐसा नहीं है कि डेली 9 to 5 होना चाहिए. आप उसको कैसे भी अपने हिसाब से एक बार सेट कर सकते हो कि ये मेरा पैटर्न होगा, ये मेरा रूटीन होगा. आपका रूटीन ये भी हो सकता है, उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि हर मंथ किसी दूसरी सिटी में जाना.
तो आपने एक बार सेट कर दिया कि मेरा ये रूटीन है कि मैं हर मंथ किसी डिफरेंट सिटी में जाता हूँ काम के लिए या ट्रिप के लिए जो भी, तो वो आपको जब तक आप उस रूटीन में स्टिक हो, जब तक आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो एवरी मंथ, इट डजेंट मैटर कि वो सेम पैटर्न में होना चाहिए, सेम डे के लिए होना चाहिए, सेम टाइम के लिए होना चाहिए, जब तक आप उस सेट किए हुई चीज़ को फॉलो कर रहे हो तब तक सब सही है। तब तक आप उसको एज अ डिसिप्लिन में कर रहे हो, आप तब तक आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो। तो रूटीन का मतलब तो मतलब वो तो नहीं है जो कि हम सोच रहे थे कि डेली, उसको शायद डेली रूटीन बोलते हैं, जो भी रूटीन बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो भी मतलब जो भी महान लोग या सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अगर अपने मंथ में या अपने जो भी अपने टाइम पीरियड में जो भी चीज़ सेट करते हैं, नॉट स्पेसिफिक, नॉट रैपिडेटली, बट अगर वो कोई चीज़ को सेट करते हैं तो फिर वो उस चीज़ पे स्टिक भी रहते हैं, तब वो उस चीज़ को पूरा भी करते हैं और उसी को रूटीन को फॉलो करना कहते हैं। और कुछ लोग फिर इसमें ये भी चीज़ पॉइंट ऐड होता है कि वो चीज़ आपके मूड के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, कि अगर आपने सेट किया है तो आपका कुछ लोग बोलते हैं ना कि आज मन कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, आज आज वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, आज ये नहीं कर रहा, आज वो नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ आपके मूड के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आपके मूड के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टारगेट सेट किया है कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो वीडियो अपलोड करनी ही पड़ेगी, वो अपलोड करनी ही चाहिए। इट शुड नॉट हैज़ टू बी लाइक आज मेरा मन नहीं है या आज मेरा मूड नहीं है। सो इट शुड नॉट डिपेंड ऑन योर मूड, it should not depend on anything. If once you have decided, you have to stick with it, you have to stick on it, you have to be with it. यही बताया इन्होंने इस चैप्टर में, जो कि मेरे को समझ में आया। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बट गलत होऊंगा तो मैं रीचेक कर लूँगा, मैं देख लूँगा उसको, बट अभी के लिए मेरे को यही समझ में आया। तो उसके अलावा इन्होंने जो पहला पॉइंट, अच्छा सॉरी, अभी पहला पॉइंट नहीं आया था, मतलब ये दूसरे चैप्टर की पहली वो इंट्रोडक्शन ही बता रहे थे और इसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं इन्होंने। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, और वैसे मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि ये चैप्टर है द साइकोलॉजी ऑफ डेली रूटीन, कि डेली रूटीन की हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस या हमारे माइंड के ऊपर, हमारी थिंकिंग लेवल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें उन्होंने ये बताया। तो अभी हम नेक्स्ट मतलब फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। योर हैबिट क्रिएट्स योर मूड एंड योर मूड्स क्रिएट ए फिल्टर थ्रू विच you experience your life. Wow, that's interesting. Let's see what it is. Your habits create your mood and your moods create a filter through which you have through which you experience your life. It would make sense to assume that moods are created from thoughts or STRESSOR stressor, I don't know, इतना ही काफ़ी है। It would make sense to assume that mood are created from thoughts, things that crop up during the day and knock us off kilter. This isn't so. Psychologist Robert Thayer argued that moods are created by our habitualness. How much we sleep, how frequently we move, how we think, how often we think it, and so on. Wow. कि उन्होंने बताया कि हमारा मूड कैसे, मतलब हमारी हैबिट्स क्रिएट, जो भी हमारी आदतें होती है वो हमारी मूड क्रिएट करती हैं। उन्होंने छोटी छोटी आदतें मेंशन की हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, हम कैसे सोते हैं, हम कितना सोते हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे मूव करते हैं, हम क्या सोचते हैं और हम कितना सोचते हैं, छोटे छोटे पैटर्न्स। तो ये सब चीज़ें हमारी मूड को क्रिएट करती हैं।
पहले एक बार मैं अच्छे से पढ़ के समझ लूँ, फिर मैं और एक्सप्लेन करूँगा. The point is that it's not. The point is that it's not on one thought. The point is that it's not on one thought that throw us into treasy. That throw us into treasy. That throw us into teasy. It's the pattern of continuously. It's the pattern of continually. Sorry. It's the pattern of continually expressing that thought that compound its effect and make it seems wild. Your habits create your mood, and your moods create a filter through which you experience your life. It would make sense to assume that mood create from thoughts and STRESSOR, things that crop up during the day and knock us off kilter. This isn't so. Psychologist Robert Thayer argues moods are created by our habitualness, how much we sleep, how frequently we move, what we think, how often we think, and so on. वही जो मैंने बताया कि हमारी जो मूड है वो हमारे हैबिट के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे कि मैंने देखा था कि मैंने क्या देखा था, मतलब हम अपनी लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो लोगों का मूड उनकी हैबिट से कनेक्ट होता है, कि लाइक जैसे भी उनकी आदतें होती हैं वैसा ही उनका मूड बनने लग जाता है. और वैसे ही लाइक मूड के अनुसार हम अपनी and your mood is a filter through. हाँ, कि जैसी भी आपकी आदतें होती हैं वैसा ही आपका मूड बनने लग जाता है, वैसा ही आप फील करते हो. मूड बेसिकली इज़ फीलिंग, कि आप जैसे ही आपकी आदतें होती हैं वैसे ही आप फील करते हो, वैसे ही आपको थॉट्स आते हैं. वैसे ही अगर कोई बहुत ज़्यादा आलसी इंसान है जो कि सोया रहता है, जो कि बेड पे लेटा रहता है, जिसको मूव करना या ज़्यादा बॉडी को मूव करना इतना अच्छा नहीं लगता है, जिसका काम है सारा दिन ऑफिस में बैठ के सिटिंग जॉब है, तो उसका मूड भी फिर वैसा ही हो जाता है. मतलब उसका मूड भी उसके काम के अनुसार या उसकी आदतों के अनुसार लेज़ी हो जाता है, तो उसको थॉट्स भी वैसे ही आते हैं. और उसका लाइफ का एक्सपीरियंस भी वैसा ही होता है कि एक फिट इंसान का लाइफ का एक्सपीरियंस और एक आई शुड नॉट से मोटे बट लेज़ी इंसान का लाइफ एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम नहीं होता है, टोटली डिफरेंट होता है. एक इंसान जो डेली जिम जाता है, डेली वर्कआउट करता है, उसके थॉट्स, उसके एक्सपीरियंस उस इंसान से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. एक इंसान जो डेली वर्कआउट कर रहा है उसका अपने खाने को लेके, उसका अपने डेली रूटीन को लेके, उसका अपनी लाइफ को लेके एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग माइंडसेट होता है. उसके थॉट्स उस तरह के होते हैं, उसका मूड उस तरीके का होता है, उसकी एनर्जी उस तरीके की होती है. पॉजिटिव कह सकते हैं हम, या एक मतलब हम चेंज देख सकते हैं. और एक जो आलसी इंसान होता है उसको थॉट्स भी वैसे आते हैं कि चलो यार यहाँ पे कुछ खा के आते हैं, चलो फास्ट फूड खाते हैं, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, दिन में सो लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, कोई बैठ के वीडियो गेम खेल लेते हैं, कुछ भी. इट कुड बी एनीथिंग. मतलब वो आपके थॉट्स उस तरह के पैटर्न को कनेक्ट करने लग जाते हैं कि अगर कोई एक इंसान है जो डेली वर्कआउट करता है तो उसके थॉट्स भी उस तरह के आएंगे जो उसको एक बेहतर लाइफ की तरफ लेके जाएंगे, जो उसको लगेगा कि वो अपनी बॉडी को और मूव कर सकता है, वो अपनी बॉडी के साथ और एनर्जेटिक वे में एनर्जी को ट्रांजैक्शन कर सकता है, एनर्जी के साथ कि जिस तरह की उसकी हैबिट होंगी उस तरह का उसका मूड होगा, और जिस तरह का उसका मूड, उसकी एनर्जी, उसके थॉट्स होंगे उसी तरह का वो लाइफ को एक्सपीरियंस करेगा. तो एक इंसान हो सकता है कि जिसको डे में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही हो, जिसको लग रहा हो कि यार दिन कितना अच्छा है आज, जिसको लग रहा हो कि यार मौसम कितना बढ़िया है, चलो यहाँ पे चलो थोड़ी सैर करके आते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ी देर टहला जाए, थोड़ी नेचर की हवा ली जाए.
वहाँ पे दूसरा इंसान हो सकता है कि थोड़ा सा ही काम करने पे बहुत ज़्यादा थका थका फील करे और उसको लगे कि यार आज कितना दिन कितना टायर्ड भरा था। उसको फिर थॉट्स उस तरह के आ जाएं, उसका मतलब माइंड स्लो हो जाए, वो कुछ भी कचर पचर खा सकता है, वो किसी भी तरीके का फास्ट फूड खा सकता है और फिर उसको लगेगा कि यार अब तो नींद बहुत हैवी खा लिया, बहुत ज़्यादा, कहाँ सैर करने जाएंगे, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। फिर वो सोएगा तो फिर किसी भी बे टाइम सो सकता है। फिर उसको, समझ रहे हो ना, मतलब बेसिकली पैटर्न बता रहा हूँ कि एक इंसान की हैबिट्स उसका मूड क्रिएट करती हैं और फिर जो उसका मूड होता है वही उसके थॉट्स होते हैं और उसकी एनर्जी होती है। फिर वो उसी तरीके का अपनी एनर्जी के साथ एक्सपीरियंस फील करता है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वर्कआउट, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट good habits like workout, like walking, like बेसिकली यही मीनिंग है इसका। और आई होप सो यू अंडरस्टैंड। और ओके, द सेकंड पॉइंट क्या है, वन सेकंड। एंड द सेकंड पॉइंट इज you must learn to let your conscious decision dictate your day, not your fears and impulse। क्या सुंदर बात कही है। इसका तो मतलब पहली लाइन में समझ में आ गया, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं और कौन कौन सी इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं और क्या क्या दिए हैं। यू मस्ट लर्न टू लेट योर कॉन्शियस you must learn to let your conscious decisions dictate your day, not your fears or impulses. And an untamed mind is minefield. An untamed mind is minefield, with no regulation, focus based on self control. Anything can pursue you into thinking what you want, something that you don't actually. I don't want to go out for drink tonight. Not prepare for the presentation. Not prepare for the presentation. Tomorrow seems wild in the short term, but in the long term, presentation. Tomorrow seems valid, not wild. Tomorrow seems valid in short term, but in the long term it distrust, I don't know, disastros. Going out for drink and night probably isn't worth time. Going out for drink one night probably wasn't worth pumping a super important meeting. Sorry, one second. Going out for drinks one night probably isn't worth bombing a super important meeting. Learning to craft routine is the equivalent equivalent of learning to let your conscious choice about what your day will be about guide you, letting all the another temporary crap fall to wise wide। इस पैराग्राफ में काफ़ी हार्ड इंग्लिश थी यार, मतलब कुछ वर्ड।
ओके, मेरे को समझ में आ गया, बट स्टिल टू रीड इट फ्लुएंटली आई हैव टू रीड इट अगेन. You must learn to let your conscious decision dictate your day, not your fears and impulsives. An untamed mind is minefield. An untamed mind is minefield. With no regulation focus based on self-control, anything can pursues you into thinking that you want something that you don't actually want, I want to go out for drinks tonight, not prepare for the presentation tomorrow. Seems valid in the short term, but in the long term, distress. Going out for drink one night probably isn't worth bombing a super important meeting. um, learning to learning to craft your routine is the equivalent of learning to craft your routine is equivalent to learning your let your conscious choice about your day will be about to guide you, letting all the others temporary trips to fall the wayside. अच्छा, अभी मेरे को फर्स्ट लाइन का तो समझ में आ गया और लाइक मतलब क्या कहना चाहते हो उसमें कुछ कुछ तो समझ आ गया, बट कुछ वर्ड्स के मीनिंग मेरे को समझ नहीं आया और प्रोनाउंस करना भी सही से नहीं आया, क्योंकि मैं उनको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था या फर्स्ट टाइम सुन रहा था, मतलब पढ़ के सुन रहा था, और शायद इसलिए. बट जो मुझे ज़्यादातर मतलब जो चीज़ मुझे समझ में आई है, हो सकता है कि यही मतलब हो सकता है कुछ और भी मतलब हो. सेंटेंस का मतलब कुछ और हो सकता है, सेंटेंस का पूरी लाइन का मतलब कुछ और हो सकता है, बट जो आइडिया वो मेरे को समझ में आया, और वो आइडिया ये है कि आपको अपने कॉन्शियस माइंड यू मस्ट लर्न टू लेट योर कॉन्शियस डिसीजन डेडिकेट योर डे. कि मतलब आपको अपने कॉन्शियस डिसीजन से अपने डे को कंट्रोल करना या अपने डे को डिसाइड करना आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए ये चीज़. जैसे कि दिमाग एक खाली मैदान की तरह, आई डोंट नो यार, इसका मतलब नहीं मेरे को पता. माइंडफील्ड में भी सॉरी एन अनटेम्ड माइंड इज़ माइंडफील्ड मैंने कहीं तो सुना है, वर्ड मेरे को सुना लग रहा है, बट इसका मीनिंग अब मेरे को याद नहीं आ रहा. बट बेसिकली जो मैं इसको अपने तरीके से समझ पा रहा हूँ कि शायद ये हो सकता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, या अगर ये नहीं भी हुआ तो लाइक एन अनटेम्ड माइंड इज़ अ माइंडफुल. कैन आई यूज़ माई लैपटॉप? नो, इट्स ओके. हम बाद में इसको नोट कर लेते हैं, इसका मतलब समझेंगे, और अगली बारी में आपको ज़रूर बताऊंगा. पहले ये नोट कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइक मतलब कुछ पता लग रहा है. Untamed mind is IELT. Okay. Search the meaning of that sentence. Okay. तो बेसिकली आपको सीखना चाहिए कि कैसे आप अपना अपने कॉन्शियस माइंड से अपना डे को सेट कर सकते हैं, अपने डे को डेली रूटीन को सेट कर सकते हैं. क्योंकि अगर कि जैसे कि अगर आपको एक मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना है बेसिकली, बट आप अपने टेम्पटेशन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और बोलते हैं कि चलो आज रात मैं पार्टी के लिए जा रहा हूँ, तो आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे. तो ये आपके कॉन्शियस डिसीजन से नहीं आएंगे, ये डिसीजन जो आपने लिया है
ये आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं आया। आपने अपने ऊपर अपनी टेम्पटेशन, अपने किसी भी चीज़ को बोल लो, अपने स्वाद को बोल लो, अपने ऊपर हावी होने दिया है, या अपनी टेम्पटेशन को अपने ऊपर हावी होने दिया है। तो ऐसे जब आप सीखते हो कि अपने डेली रूटीन को कैसे सेट करना है कॉन्शियसली, अपना एक डेली रूटीन बनाते हो या अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो, या अपने कहने का मतलब बेसिकली जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपने डे को सेट करते हो, तब आपके ऊपर आपका कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी छोटी मोटी जो क्रेविंग होती है वो हावी नहीं होती आपके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आपका डेली रूटीन, जब आप अपने आप को फोकस रखते हो, जब आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखते हो, तो आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हो, आप छोटी मोटी टेम्पटेशन के पीछे नहीं भागते हो, और आप लालसाओं में लुप्त हो। सॉरी, मैंने कहीं तो पढ़ा, ये भगवत गीता में कुछ तो पढ़ा था कि मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। जब आप अपने बुद्धि से अपनी भगवत गीता का एक श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उनका मतलब डिकोड ऐसे किया जाता है कि जब आप अपनी इंद्रियों को अपनी बुद्धि द्वारा कंट्रोल करते हो, तो आपकी इंद्रियां भोग विलास में विलुप्त नहीं होती, भोग विलास के पीछे नहीं भागती। अगर आपने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, अगर आपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, और आप अपनी भोग विलास यानी कि टेम्पटेशन में लिप्त नहीं होते हैं, तो आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली आप कॉन्शियस रह के अपने सेम चीज़ इसमें, सेम चीज़ उसमें थी, तो कनेक्ट करके बता रहा हूँ। अभी मैंने बहुत टाइम पहले भगवत गीता पढ़ी थी, आई थिंक आई हैव टू रिकॉल दैट, मतलब फिर से पढ़ूँगा तो सब रिकवर हो जाएगा, याद आ जाएगा। बट बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दैट नॉलेज विद दैट रेफरेंस। तो बस यही है कि अगर आप अपने डे को कॉन्शियस तरीके से डिसाइड करते हो, आप अपने डे को, डेली रूटीन को सेट करते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो, और अपने डे को एक प्रॉपर वे में सेट करते हो, तो आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हो, आपके ऊपर आपकी टेम्पटेशन, आपकी क्रेविंग ज़्यादा हावी नहीं हो पाती। ओके, चलिए, आई होप सो ये कवर हो गया हो। तो हम तीसरे पॉइंट पे आए। तो तीसरा पॉइंट इज़ हैप्पीनेस इज़ नॉट हाउ मैनी थिंग्स यू डू बट हाउ वेल यू डू दैम। वाओ, ये तो मेरे ऊपर एक लाइक, हैप्पीनेस इज़ नॉट हाउ मैनी थिंग्स यू डू बट हाउ वेल यू डू दैम। कि हैप्पीनेस वो नहीं है कि आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो या करते हो, बल्कि हैप्पीनेस उससे आती है कि आप कितनी चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से करते हो। अगर आप किसी काम को करते हो तो वो कितने बेहतर तरीके से करते हैं। ये इसका हेडलाइन थी। अब इसको उन्होंने एलैबोरेट किया है, इसको एक्सप्लेन किया है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे बता दूं कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ और मैं सब में बेस्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ कुछ कुछ ठीक ठीक लेवल तक कर लेता हूँ। बट आई थिंक आई शुड रीड दैट, ताकि मैं समझ पाऊँ कि वो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या मैं सच में मतलब इतनी सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। द मोर इज़ नॉट बेटर, the more is not better. happiness is not experience some Happiness is not experience something else, it's continuously experience what you already have. It's more is not better. Happiness is not experience something else, it's continuously experience what you already have in new and different way, or you already have in new and different ways. Unfortunately, as we are taught that passion should drive our energy through move and decisions, we are basically we are basically impelled with the fear that we are unhappy because we are not doing enough. एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। More is not better. Happiness is not experience something else, it's continuously experience what you already have in new and different ways. Unfortunately, as we have taught that passion should drives our energy through move and decisions, we are basically impelled
impelled with the fear that we are unhappy because we are not doing enough. हाँ थैंक गॉड बच गया मैं. तो इन्होंने बताया है कि लाइक मोर इज़ नॉट बेटर, मोर इज़ नॉट बेटर बिकॉज कि हमें ये सिखाया गया है कि जितना ज़्यादा हम करते हैं, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं उतना बेहतर है, उतनी ज़्यादा तरीके से हमें हैप्पीनेस मिलेगी. कि जितना ज़्यादा हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमें हैप्पीनेस मिलेगी. जितना ज़्यादा हम कोई काम जितना ज़्यादा करेंगे या कोई चीज़ जितना ज़्यादा कलेक्ट कर लेंगे उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी. बट इसमें बताया है कि मोर इज़ नॉट हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज़ नॉट हाउ मेनी थिंग्स यू डू बट हाउ वेल यू डू दैम. अगर आप कम चीज़ें भी करो बट अगर उसको अच्छे से करो तो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस होगी, बजाय इसके कि आपको हड़बड़ी में रहो 24 घंटे और सोचो कि मैं कितना ज़्यादा कर सकता हूँ, कितना और कर सकता हूँ. उससे ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं आएगी. कैसे ये तो इन्होंने खैर नहीं बताया, बट इन्होंने बताया कि हैप्पीनेस उसी से आएगी जो हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है और हम उसको नए तरीके से, उसी चीज़ को नए और बेहतर तरीके से ज़्यादा कैसे फील कर पाएंगे, उसी से ही हमें हैप्पीनेस आएगी. जैसे कि अगर आप एक स्किल सीखते हो तो अगर उसके स्किल्स के मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आप सोचो कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ जल्दी से जल्दी तो उसमें मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी, या जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ या सकती हूँ उसमें मेरे को हैप्पीनेस मिलेगी. इसमें बोला गया है कि ऐसा नहीं है. अगर आप कम चीज़ें करते हो बट बेहतर तरीके से करते हो और उसमें मास्टरी हासिल करते हो, या मतलब बेहतर तरीके से करना वही हो गया कि मास्टरी, मैं अपनी तरफ से वर्ड नहीं ऐड कर रहा हूँ, कि अगर आप कम चीज़ें भी करते हो बट बेहतर तरीके से करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी. ये पॉइंट अच्छा है. आई थिंक आई नीड टू अप्लाई दैट बिकॉज मुझे उसका एग्ज़ाम्पल नहीं मिला, तो शायद मैं किसी एग्ज़ाम्पल से रिलेट कर पाऊँ. क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे कि मैं राइटिंग करता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, मुझे रैप का भी बहुत शौक़ है, मैं चेस खेलता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, और उसके अलावा यूट्यूब शुरू किया है. मेरे को रीडिंग का बहुत शौक़ है. उसके अलावा मेरे को नए लोगों से बात करने का बहुत अच्छा लगता है, कि मतलब नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है. बट मेरी रियल लाइफ दोस्त नहीं है, बट सोशल मीडिया पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. तो मेरे को लोगों से बात करना, उनकी लाइफ के बारे में जानना, उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना, उनसे सीखना बहुत अच्छा लगता है. नई जगहों, नई मतलब क्लासिक, हिस्टोरिक और म्यूज़ियम टाइप की जगहों पे देखना, मतलब उन वहाँ पे जाना, उनको घूमना बहुत अच्छा लगता है. ट्रैवल बहुत अच्छी लगती है. तो जब मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी तो जब मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ तो शायद मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं. तो बट द गुड थिंग इज़ दैट कि मैंने सब कुछ बहुत बचपन से शुरू कर दिया था. क्योंकि बचपन में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैंने सब कुछ ही बहुत मैंने अपना बचपन ज़्यादातर अपनी हॉबीज़ के साथ गुजारा है. भले वो राइटिंग हो, भले वो रीडिंग हो, या मतलब कुछ हैबिट्स मेरे को, लाइक वर्कआउट की हैबिट मेरे को बचपन से है, एक्सरसाइज की हैबिट मुझको बचपन से है. आई लव वॉकिंग, आई लव साइकिलिंग, आई लव एनी काइंड ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और बाकी सब चीज़ें भी. तो वो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ. तो इस टाइम पे आके, इस वक्त तक आके मैं ज़्यादातर चीज़ों में बहुत अच्छा हो गया हूँ. आई प्ले रियली गुड नॉट बहुत हाई लेवल की नहीं. मैंने गलती से डीमी से पंगा ले लिया था. डीमी का स्कोर था 800, लाइक सॉरी नॉट 800, 1820 समथिंग, और मेरा 1100-1200. वो चेस पे कुछ स्कोर होता है. तो डिमी भी मेरा एक दोस्त था, वो चेस बहुत अच्छी खेलता है, तो मुझे लगा था कि शायद मैं उसको हरा पाऊँगा. 2 मिनट नहीं टिका मैं उसके सामने. ही इज़ अ काइंड ऑफ मास्टर, ग्रैंड मास्टर लेवल प्लेयर. तो मैं अभी लाइक बिगनर से ऊपर हूँ, मतलब ठीक ठाक खेल लेता हूँ. तो लाइक मैं चेस में ठीक ठाक हूँ, और रीडिंग में ठीक ठाक, मतलब देख ही रहे हो आप, ठीक ठाक हूँ. और इसके अलावा मेरे को राइटिंग अच्छी लगती है, मेरे को पोइट्री अच्छी लगती है, मेरे को रैप म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है. मतलब सब में मैं ठीक ठाक हूँ. मतलब अगर मेरी पेंटिंग भी देखोगे या मेरी बाकी चीज़ें भी देखोगे तो मैं सब में ठीक ठाक तो कर ही रहा हूँ.
तो ऐसा नहीं है। तो बट मेरे को ये चीज़ अप्लाई करके देखनी चाहिए। बट मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ, और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। तो सब चीज़ अच्छी चल रही है, बट स्टिल अगर कुछ पड़ा है तो कुछ अप्लाई करके भी देखना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा। अम, एक मिनट पानी पी लूँगा मैं। Point number 4. When you regulate your daily actions, when you regulate your daily actions, you deactivate your fight or flight inst- instincts, 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 uh, because you are no longer con, comforting the unknown. When you regulate your daily actions, you deactivate your fight or flight instincts, because you are no longer conducting the unknown. This is why people have such difficult time with change. This is why people have such a difficult time with change, and why people who are consist, constant, and why people who are constant in their habit experience so much joy. Simply, their fear instincts are turned turned off long enough for them to actuate and enjoy something. I think I need to read it again. This is why people have such a difficult this is why people have such a difficult time uh, this is why people have such a difficult time with change, and why people who are consistent in their habits experience so much joy. Simply their fear instincts and this is why this is why people have such a difficult time with change, and why people who are constant with their habits experience so much joy. Simply their fear instincts are turned off long enough for them to actually enjoy something. When you regulate your daily actions, you deactivate your fight and flight instincts. हाँ, मेरे को जो समझ में आया इसका मतलब, हाँ ज़्यादा नहीं, मतलब मैं जो भी मैंने समझा है वो इस हिसाब से है कि जब आप व्हेन यू रेगुलेट योर डेली एक्शन, जब आप अपनी हैबिट या अपने एक्शन के साथ कंटिन्यूसली उसको मतलब करते रहते हो, या एक ही तरीके के, अगर आपका अगर आपकी कोई भी हैबिट है, वर्कआउट की हो या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो या कुछ भी हो, जब आप उसको डेली करते रहते हो, डेली अगर आप आपने हैबिट बना रखी है और अपने एक्शंस के साथ कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो या उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ हो, तो देन यू बिकम मोर श्योर अबाउट दैट थिंग। आपका फाइट एंड फ्लाइट जो कि एक द फियर ऑफ अननोन होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हो या कंटिन्यूसली उसके साथ कनेक्टेड हो, तो आपका वो वाला फियर ख़त्म हो जाता है। जो कि मैंने समझा, जो कि पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज ये है कि मैं इसमें गलत हो सकता हूँ। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ये मेरे को समझ में नहीं आई, या लाइन मेरे को समझ में नहीं आई, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ
इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें. दिस इज़ वाई पीपल हैव सच अ डिफ़िकल्ट टाइम विद चेंज and why people who are consistent with their habits experience so much joy. इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है बट फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों. बट जो मेरे को समझ में आया, हो सकता है कि 10% ही सही हो सकता है 10% सही हो, 90% गलत हो. तो इसके लिए लाइट इसके लिए मैं इसमें क्या उसको बोलते हैं, ज़्यादा श्योर नहीं हूँ. बट स्टिल अगर आपको पता है कि क्या मैं सही हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में मेक श्योर कर दीजिए. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पता करके बताइए, या फिर मैं बाद में पता कर लूँगा. बट जो भी है मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, या आप इस चीज़ को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को खुद से सर्च करो और ख़ुद से पता करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में. Point 5. As a children, routine gives us a feeling of safety. As adult, it gives us feelings of purpose. As a children, routine gives us the feeling of safety. As a children, it gives us the feeling of purpose. In INTER. Interestingly enough, those two feelings are more similar than you would think. At least their origin is the same. It's the same thing as the fear of unknown. It's the same thing as the fear of unknown. As a children, we don't know which way is left. As a children, we don't know which way is the left, let alone why we are alive, or whether or not particular activity we have never done before is going to be scary or harmful. When we are adults engaging with routineness, we can comfort ourselves with the simple idea of I know how to do this, I have done it before. शायद ये ऊपर वाली जो हमने सीखा कि फेयर ऑफ अननोन, जब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो जब हमें पता होता है कि लाइक हम डेली एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा बार करते हैं, या हम एक ही चीज़ के साथ स्टिक रहते हैं, तो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड ख़त्म हो जाता है, और हम बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि हमने क्या किया है, या हम कहाँ जा रहे हैं, या द फेयर ऑफ अननोन ख़त्म हो जाता है. सेम इसमें भी उन्होंने वही बताया कि जब हम एज अ चिल्ड्रन, ये हमें एक सेफ्टी देता है कि अगर हमने पहले भी कोई गेम खेली हुई है, अगर हमने पहले भी कोई चीज़ की हुई है, तो हमें इतना डर नहीं लगता क्योंकि हमने पहले भी वो किया हुआ है. एंड एज अ अडल्ट ये हमें एक तरीके का पर्पस देता है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर हम तो वो हमें एक ग्रोथ भी देता है, एक सेंस ऑफ पर्पस देता है कि हमें पता है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और फेयर ऑफ अननोन ख़त्म हो जाता है. और हम जैसे कि अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और आपके रिज़ल्ट आपके सामने होते हैं. लाइक अगर आप 6 महीने तक डेली एक्सरसाइज करते हो, 6 महीने उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहते हो, तो आपको 6 महीने बाद पता डिफरेंस दिखने लग जाता है, और आपको ये फेयर नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो. और जब आपको ये कंफर्म हो जाता है, आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि आप सही हो, और जो भी आप कर रहे हो वो सही है, सही डायरेक्शन में है, और वो फाइट एंड फ्लाइट का डर ख़त्म हो जाता है, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है. तो इसी तरीके से वो सेंस ऑफ एक पर्पस भी देता है कि हाँ, मैं एक हेल्दी वे में हूँ, मैं अपनी हेल्थ के प्रति मोर कॉन्शियस हो रहा हूँ, या मैं जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो उसमें आप देखते हो उसमें आपको पता चलता है कि आप एक राइट वे में हो. आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है कि हाँ, मैं सेल्फ ग्रोथ की तरफ हूँ, या जो भी है. तो ये सेम काइंड ऑफ द वो था, मतलब उन्होंने इसमें कंफर्म कर दिया है कि ऊपर वाला और ये वाला पॉइंट एज अ सेम है. तो एज अ चाइल्ड ये आपको सेफ्टी महसूस करवाता है. अगर आपने सेम पर्सन को देखा हुआ है और वो आपके साथ पिछला एक्सपीरियंस आपका उनके साथ सेफ़ रहा है, अच्छा रहा है, तो आप उनके पास दोबारा जाना चाहोगे.
सेम अगर आपने कोई काम पहले किया है और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप वो काम फिर से करते हो और एक टाइम के बाद वो सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ पर्पस दोनों प्रोवाइड करवाता है। तो यही था, इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, बट ठीक है, समझ में आया कि कैसे आप एक चीज़ के बारे में सिक्योर और सेफ फील करते हो और आपको एक श्योरिटी मिलती है। और वो जो डर होता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं लाइफ में क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, तो वो चला जाता है इसके साथ। अगर आप अपनी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप अपने हैबिट्स और अपनी चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहते हो। पॉइंट नंबर 6, यू फील constant because routine consistently reform, तस्दीक, पुष्टि करना, ओके क्लैरिटी मतलब पुष्टि करना इज़ क्लैरिटी। you feel constant because routine consistently reforms a decision you already made। ये सब ये सेम नहीं है, लाइक तीनों पॉइंट सेम लग रहे हैं मेरे को। You feel consistent because routine consistently reforms a decision you already made. I said decision is that you want to write a book and you commit to doing 3 pages each night, however long it takes to complete it. You affirm, दृढ़ता के साथ, you affirm not only your choice to begin, but your ability to do that. It's honestly healthiest way to feed a validation. ओके, इन्होंने बताया कि आप कंसिस्टेंट किस लिए फील करते हो, क्योंकि आप क्लैरिटी मिलती है उन फैसलों से, उन डिसीज़न से जो आपने पहले भी लिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप एक बुक लिखना चाहते हो और आप अपने आप को लाइक डेडिकेट करते हो उस चीज़ को, आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो उस चीज़ को कि आप हर रात 3 पेज लिखोगे ही लिखोगे, और इट डज़ंट मैटर हाउ मच टाइम इट टेक्स, आप उस चीज़ को पूरा करते हो, आप उस चीज़ को लिखते हो एंड योर एबिलिटी टू, तो उसके साथ ही आपको क्लैरिटी मिलती है और उसके साथ भी उसका वैलिडेशन, मतलब वो क्लियर रहता है कि हाँ आप कर सकते हो और आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ये तीनों पॉइंट मेरे को सिमिलर लगे, आई डोंट नो, ये कई बार ना मतलब सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन वो बुक्स को खींचने वाली बात हो जाती है, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। अगर मेरे को फिर से कोई ऐसा पॉइंट लगेगा तो मैं स्किप कर दूँगा। As your body self-regulate, routine becomes the path way to flow. As your body self-regulates, the routine becomes the path way to flow. In case you don't know, you probably do. Is essentially what happens when we become so completely engaged with what we are doing. All the ideas or worry dissolves. We are just completely present in the task. The more you train your body to respond in difficult cues, 7 a.m. is the way to wake. 7 a.m. is when you wake up, and 2 p.m. is when you start writing, so on. You naturally fall into flow with lot more easy just out of habit. तो इसमें इन्होंने फ्लो की बात की है। एज योर बॉडी सेल्फ रेगुलेट, रूटीन बिकम द पाथ ऑफ वे फ्लो, कि जब आप एक ही चीज़ बार बार करते हो तो आपकी बॉडी फ्लो में जाने, योर रूटीन बिकम, आपका जो डेली का रूटीन है वो एक तरीके का एक वे बन जाता है फ्लो में जाने के लिए। फ्लो क्या है? फ्लो एक माइंड स्टेट है जिसमें आप जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसमें इतना ज़्यादा विलीन हो जाते हो
कि आपको अपने आसपास की चीज़ों की होश नहीं रहती, आपके अंदर के जो सारे डर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके अंदर के जो बहुत सारे ओवर थिंकिंग या ओवर आइडियाज़ आ रहे होते हैं वो सब क्लियर शांत हो जाते हैं, और आप एक ही चीज़ में इतना ज़्यादा डूब जाते हो कि आपको फील ही नहीं होता, आपको टाइम फील नहीं होता, आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आप होते हो और आप उसी में डूबते जाते हो। ऐसा मोस्टली आर्टिस्ट के साथ होता है, जब कोई पेंटिंग्स बनाने में बहुत ज़्यादा डूब जाता है, जब कोई म्यूज़िक में इतना ज़्यादा डूब जाता है। बट वो तब होता है जब आप अपनी डेली रूटीन के साथ, जब आप अपनी किसी प्रैक्टिस के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो और आप डेली रूटीन में उसको करते रहते हो, एंड यू फील दैट व्हेन एंड यू फील दैट स्टेट ऑफ माइंड। फ्लो इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। तो हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपनी थ्योरीज पे काम कर रहे थे तो वो इतने इतने दिन अपने कमरे में बंद रहते थे, या निकोला टेस्ला, या पाब्लो पिकासो, या विंसेंट वैन गॉग, लियोनार्डो डा विंची। हम जितने भी अगर नए दौर की बात करें तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जब अपना म्यूज़िक प्ले करते हैं तो हम देखते हैं उनको कि वो अपनी सरगोमा में कैसे डूब जाते हैं, हम वो अपने म्यूज़िक अपने साथ में कैसे डूब जाते हैं। सो फ्लो इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी जस्ट डोंट केयर अबाउट टू मच आइडियाज़, और हम उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं और उस चीज़ में डूब जाते हैं। सो यही बताया उन्होंने। लास्ट वाला पॉइंट है, 8वें पॉइंट पर पहुंच गए हैं। when we don't settle into routine when we don't settle into routine, we teach ourselves that fear is indicator that we are doing the wrong thing rather than just being a very invested in the outcome. A lack of routine is just a breeding ground for perpetual pro procrastination. A lack of routine is just breeding a ground for perpetual procrastination. It gives us gaps and space in which our subconscious mind can say, well, you can take break now, when in fact you have deadline. When you have used to taking a break at that point in time, you will allow it simply because you always do. एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। A lack of routine is just breeding ground for procrastination. A lack of routine is just breeding ground for a lack of routine मतलब रूटीन की कमी है, जस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड, ज़मीन को खोदना लगातार प्रोकास्टिनेशन के लिए। इट गिव्स अस अ गैप एंड स्पेस इन विच आवर सबकॉन्शियस माइंड when we don't settle for routine, we teach ourselves that fear is an indicator that we are doing the wrong thing rather than just being still in the outcome. ये भी मेरे को समझ में नहीं आया, एंड ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बट खैर हमारे 8 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 8 में से जितने समझ में आए उतने समझ में आए, जितने नहीं समझ में आए उतने नहीं समझ में आए। आपको अगर आए हों तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर पढ़ लूँगा। अगर आपको भी नहीं आए हों तो जाके सर्च कीजिएगा, उसको क्लियर कीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं ChatGPT से पूछ लूँगा अपने हिसाब से, आप अपना देख लीजिए मेरे, ठीक है। तो आप भी ChatGPT से पूछ के या कहीं से भी देख के, गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी आपको लगेगा, इसको अपना ये क्लियर कीजिएगा। और इसके अलावा आई होप सो यू लाइक, आई होप द वे आई रीड, आई होप सो यू understand little bit, I hope so it will increase any kind of value in your life. And yeah, और अगले चैप्टर मतलब चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे थिंग्स इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल डू।
थिंग्स इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल टू नॉट टू, सॉरी नॉट टू, टू नॉट टू, थिंग्स इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट डू। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ शिव एंड आई एम एन आर्टिस्ट।